Chairperson Department of Physical Education Janab Professor Sayyid Tariq Murtaza Sahab, respected faculty members and dear participants. I welcome all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we have gathered here to celebrate 9th International Day of Yoga and commemorate this day with Akhand Yoga Karyashala ceremony. Before proceeding further, as per the holy traditions of this prestigious university, we start the program with a recitation of holy verses of Quran. So for this purpose, I would like to invite Abdul Hafiz Farooqi to come here on the podium and recite holy verses of the Quran. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Allah says in the Holy Quran, and your Lord has decreed that you worship none but Him, and that you be dutiful to your parents if one of them or both of them attain old age in your life.
Say not to them a word of disrespect, nor shout at them, but address them in terms of honor. And lower unto them the wing of submission and humility through mercy, and say, My Lord, bestow them your mercy as they did bring me up when I was small. Sadaqallahu Azim. Jazakallah. I would like to invite Chairperson Department of Physical Education, Janab Professor Saeed Tariq Murtaza Sahab, to deliver the welcome speech. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जैसा कि आप लोगों को सबको मालूम है, आप सब लोग इसी बात के लिए जमा हुए हैं, 9th इंटरनेशनल डे ऑफ योग 2023 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूरे एंथुजियाज्म के साथ मना रहा है। मैं अली जनाब वाइस चांसलर सर और रजिस्ट्रार सर और तमाम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन की जानिब से आप सब लोगों का खैर मकदम करता हूँ, आप सब लोगों का वेलकम है। ये पूरा इवेंट हमारा जो है वो 8 बजे तक चलेगा। उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमारी और आपकी रहेंगी। एक बात को हम लोग बहुत अच्छे से जो है वो यहाँ पर दोहरा लेंगे कि हम लोग जो हैं वो टर्म एक बोलते हैं योगा। योगा इज़ नॉट एनी टर्म, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, मिस प्रोनाउंसिएशन है। दिस इज़ योग, दिस इज़ योग, राइट, दिस इज़ अ संस्कृत वर्ड, और जो जिस वर्ड का, जिस ज़ुबान का वर्ड हो उसको उसी ज़ुबान में ही बोलना चाहिए। अगर हम इंडियंस इसको सही से नहीं बोलेंगे तो कौन फिर इसको बोलेगा। दिस इज़ नॉट योगा। आप लोग एक बार मेरे साथ बोलें योग, एक बार फिर से बोलेंगे योग, राइट, योग, दैट्स इट, दिस इज़ कॉल्ड, है ना। दूसरा मिसकॉन्सेप्शन इससे रिलेटेड जो है वो बहुत ही गलत एक धारणा बन गई है कि ये किसी ख़ास विशेष देश का है या किसी ख़ास कम्युनिटी का है या किसी ख़ास किसी धर्म रिलीजन से जुड़ा हुआ है। ऐसा कतई नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योग सूत्र महर्षि पतंजलि का कैनोनिकल स्क्रिप्चर है योग का। अगर योग को आपको समझना हो तो आपको महर्षि पतंजलि के योग सूत्र से समझना होगा। और महर्षि इसके अंदर जो है वो कहते हैं जाति देश काल समयानि वच्छिन्नः सार्वभौम महाव्रतम। मतलब ये कि ये किसी जाति का नहीं है, ये किसी देश का नहीं है, ये किसी काल का नहीं है, ये किसी समय का नहीं है। वच्छिन्नः, इसको टुकड़े टुकड़े मत करो, इसको टुकड़े टुकड़े करके सीमाओं में मत बांधो। ये सार्वभौम है, यूनिवर्सल है, और ये एक ऐसा व्रत है जहाँ पर हमको और आपको अपनी लाइफ को कंट्रोल करना होता है। तो योग जो है वो किसी का नहीं है, हम सब लोगों का है, हम सब खास करके भारतीयों का है, और फिर जनरल तमाम इंसानों के लिए ये योग है। इसी स्पिरिट के साथ एक बार फिर से मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ यहाँ पर, और आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। इसके लिए आप लोगों का यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। It gives me immense pleasure to inform you all that last year on this very day, our Honorable Chairperson made a big announcement of 365-day Akhand Yoga Karyashala workshop that was open for all. Now it is time to acknowledge the efforts of our regular participants who participate in that workshop throughout the year. They braved the scorching heat of summer and cold mornings of winter. They were so disciplined that even they did not stop, festivals did not stop them from coming to the department. For their efforts, we intend to give them mementos and shawl as a token of respect and love. For that purpose, I would like to invite Honorable Vice Chancellor Sir, Professor Mohd Gulrez Sahab to come here and present memento to our participants. The list of participants is Ajay Kumar Agarwal, Kamal Kumar Gupta, Vimal Batra, Dr. Hibzur Rahman Siddiqui, Umesh Kumar, Pankaj Kumar, Radha Gupta, Rimpi Kumar, Praveen Gupta, Mohammad Zaid Saifi, Meenal Bhatia and Ziba Khatun. Please come. ऐ अलीगढ़ रूह सैयद इल्म फन के गुलसितां। ऐ अलीगढ़ रूह सैयद इल्म फन के गुलसितां। हम तेरे ही फूल हैं और तेरे ही हम बाग़बां। चल दिया है इस चमन से
अब खिज़ां का कारवां चल दिया है इस चमन से, अब खिज़ां का कारवां यहाँ की तकबीरो अज़ां से कांपता है आसमां। ऐ अलीगढ़, ऐ अलीगढ़ रूह सैयद इल्म फन के गुलसितां। ऐ अलीगढ़, ज़ीनते फन ख्वाब सर सैयद की है ताबीर तू, हिंद की दीवार पर सबसे हंसी तस्वीर तू। अरब अफ्रीका ईरान तक की है तनवीर तू, मिल्कियत हर मुल्क की हर कौम की जागीर तू, मिल्कियत हर education who work behind the curtain. So I'll request to Honorable Vice Chancellor Sir to remain with us. Sir, please present a memento and shawl to the staff of the Department of Physical Education. I request our supporting staff, Mr. Vijay Kumar. मुल्क की हर कौम की जागीर तू। ऐ अलीगढ़, ऐ अलीगढ़ रूह सैयद इल्म फन के गुलसितां। ऐ अलीगढ़, आज भी तलबा लिबासों दिल के शहजादे यहाँ, आज भी जिंदा यहाँ उस दौर की शहजादियाँ। वो निगाहों से तारुफ, वो हंसी खामोशियाँ आज भी दोहराई जाती है पुरानी दास्तां। ऐ अलीगढ़, ऐ अलीगढ़ रूह सैयद इल्म फन के गुलसितां। ऐ अलीगढ़, उस ज़माने में यहाँ जितने हॉल्स होते थे हमारे ज़माने में, उनके नाम भी इसमें शामिल हैं। ये विकारुल मुल्क हादी आफताबों की तरह, रोज़ मसूद सुलेमान है रंगीन ख्वाब। Not an occasion for giving any speech. I think we all have come here to celebrate and practice 9th International Yoga Day. The first Yoga Day when it was inaugurated and accepted in the UN General Assembly way back in 2014. I am very happy that university since then continuously celebrated and celebrating this International Yoga Day. The theme of this Yoga 2023 is Vasudhaiva Kutumbakam, means one family, one nation and prosperity and peace. I think this is the message we also are carrying when we are also celebrating this year the G20 conference. This is on sustainability. I think yoga is part of this program of sustainability. As we all are aware that in today's world, we all directly or indirectly are being, infected or experiencing lots of stress, mental trauma, tensions. And I think yoga is one of the best way to release those stresses and to move forward in our life. I congratulate the Department of Physical Health and Sports Education, especially the chairman, and today as we call that, the yogic yodhas,
those who have taken this task and 360 days. They all were here to give this training to the students, the volunteers for organizing such a beautiful program, and I think the weather is also supporting us. We would not have expected this beautiful weather in the month of June. I think this is the day that we should take the pledge that not only today but we will bring it in our life, some kind of a healthy activity. And I believe that the activity which you can have rest of your life, because when you go for physical exercises, there is a time for you can have it 10 years, 15 years. But yoga is an exercise which is, brings flexibility in your life. I think this is by which you can, rest of your life, you can practice it. So I once again congratulate the department, university administration for bringing this program and inviting us for having at least one day practicing in front of the experts. Though I also practice yoga for last 15 years. I do every day in one form or the other, and I ask all of you to please bring in your life. I once again thank you and congratulate the department for bringing this program a great success. Thank you very much. Now I will request Honorable Registrar Sir, Janab Mohammad Imran IPS, to come here and deliver the grant. Good morning, Assalamu alaikum. Honorable Vice Chancellor Sir, and all the members of the teaching, non-teaching students, AMU fraternity present here on the 9th International Yoga Day. Sir ने सारी बातें कह दी, and I'm sure we are all looking forward to starting our yoga session and making the best of the weather that is available. This is a good opportunity for us to learn the correct way of doing yoga on certain accounts today. और कोशिश ये रहेगी हमें जो जितना पसंद है और जब हमें ज़रूरत लगती है हम इसको करें. This is a very holistic way of approaching health. From ABK High School. She has won several medals at state level. Now she is going to present a beautiful demonstration of yoga in front of us. Uruz Mudassir of MA final year from Vaishnav College. She will also going to represent a yoga demonstration in front of us. Here is the time to honor 24 Yoga Yodhas, the teachers of different schools of Aligarh who were coordinating throughout the year with us. So I request to Dean Faculty of Social Science, Professor Janab Mirza Asmar Beg Sahab, to come to the podium and present mementos to our Yoga Yodhas.
Karishala successful. I will request Professor Naima to come and present mementos to our faculty members. It is a matter of great pleasure for all of us that we have assembled here for this 9th International Yoga Day celebration, Yoga Day celebration, I beg your pardon. It is really very nice, and as the Vice Chancellor was just now mentioning, the weather also is very conducive for this kind of an activity, and we are expecting to start very shortly because it has to synchronize with the yoga celebrations in America, where the Prime Minister is visiting the UN premises, and the yoga celebrations have to start from there. I am very happy that around the year, because we walk every day in the athletics ground field adjacent to this department, every day we see around 50-60 people coming and doing yoga here in this department, and that went on for the whole year. So that is something very good, and I would urge upon others also to join this activity, because it's very good for the health of all of us, and it is something which is being provided free of cost, because if we were living in a big city like Delhi, probably we would be paying a large amount of money for this kind of a rather program or activity which would help you there. So especially young students, you know, they should all come in big numbers and join the yoga every day in the morning, which is conducted by the Department of Physical Health and Education. And I would also like to congratulate the faculty members, and especially the chairperson of the Department of Physical Health Education, Professor Tariq Murtaza, who is the main person behind this. And we have seen sometimes, you know, when the weather is slightly inclement, and very few people come up in the morning, he is standing at the gates here and urging people to come in and join the yoga activity in the department. So that is the kind of spirit which is required for taking this activity all around the year. Thank you all once again for coming to this program, and I hope that this program would turn out to be a very successful program, in the sense that it would be able to instill this kind of a spirit in all of us to join yoga programs in the university whenever they are held, and that too, you know, when this. उनके जो भी पार्टिसिपेंट्स, रेगुलर पार्टिसिपेंट्स जो 365 दिन आए हैं, उनका हम थोड़ा सा जो है वो 2-2, 3-3 मिनट में वो लोग अपना फीडबैक हमको दे दें। तो मैं सबको तो नहीं बुला पाऊंगा, आप लोगों से सबसे मैं क्षमा याचना है मेरी, लेकिन मैं फिर भी अजय कुमार अग्रवाल साहब को इस वक्त बुलाना चाहता हूँ। अजय कुमार अग्रवाल साहब आ जाएं और अपना फीडबैक पूरे साल का जो उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अखंड योग कार्यशाला को लेकर के उनका जो भी एक्सपीरियंस योग कार्यशाला में पूरे साल
लगभग जो है हम लोग उपस्थित रहे और कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जिसमें 5-5, 7-7 या 2-2, 3-3 ही लोग रह पाए थे। और सर ने इतना सबको प्रमोट किया और सभी लोगों को बहुत प्रमोट किया और बड़ा आनंद आया। और सबसे अच्छी बात ये रही कि हम पूरे साल उपस्थित रहे। हमारी जो कुछ मेडिसिन चल रही थी वो लगभग जो खत्म हो गई। बीपी की मेडिसिन थी और शुगर लेवल था हमारा, वो सब डाउन हो गया। एक साल में बड़ा अच्छा हमारा एक्सपीरियंस बना यहाँ से। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद अजय कुमार अग्रवाल साहब। अब मैं डॉक्टर हिफ्जुर रहमान सिद्दीकी साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। My experience is a wonderful experience, and I have a little bit LDL and triglycerides, and it has been finished now. So throughout the year, sir has a lots of support, and sometimes it is too much cold, or sometimes it is a rain, but we regularly attended the Karjashala. So thank you, sir, for this opportunity, and I hope it will continue. राधा गुप्ता मैडम को बुलाना चाहता हूं कि वो आए और आकर के अपने 2 मिनट 3 मिनट में अपना फीडबैक प्लीज हम लोगों को सबको दे दें, ताकि हम सब लोग अच्छे से इनकरेज हो जाएं। हम सब यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फ्रेटर्निटी है, लेकिन हम लोग जो है वो इस अखंड योग कार्यशाला का जो है वो फायदा नहीं उठा पा रहे। आप सब लोगों से मुहब्बाना रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के फीडबैक सुन लीजिए और उसके बाद आप लोग कल से जरूर जो है वो साल भर के लिए अपने को कमिट कर दीजिए, सिर्फ 1 घंटा अपनी सेहत के लिए। आने से मेडिसिन खत्म हो गई, मेरी भी मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल की चल रही थी, वो भी बंद हो गई। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बैठ नहीं पाती थी बिल्कुल जमीन पर, यहाँ आके मैंने जमीन पर बैठ के योगा शुरू कर दिया। अब मैं सारे दिन जमीन पर बैठ सकती हूँ। थैंक यू सो मच। अब मैं मोहम्मद जाहिद सैफी साहब को बुलाना चाहूँगा। जाहिद सैफी साहब हैं यहाँ पर। ये हमारे वो पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने हम सबको हमेशा हंसा के रखा हुआ है, और हंसी जहाँ पर होती है वहाँ पर जोड़ हो ही जाता है। योग का मतलब ही जोड़ है। अभी 7 बस बजने को ही है और हम लोग अपनी एक्टिविटी वो प्रोटोकॉल शुरू करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ। तो उससे पहले बस हम लोग थोड़ा सा ये फीडबैक हम लोग के सेकंड लास्ट है। जाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जब से मैंने योगा स्टार्ट करा, एक जवानी की तरफ दूसरा बुढ़ापा जो था वो जवानी की तरफ आ गया। अरे वाह। और कोई ये कहने लगे क्या कर रहे हो, तुम आजकल क्या खा रहे हो? क्या? मैंने कहा मैं तो योगा करना शुरू करा, स्टार्ट वेट भी मेरा कम हुआ और काफ़ी मतलब इससे जो बदन में सुस्ती थी वो बहुत ही फुर्ती रही। और मेरे जो यहाँ कोच जितने भी हैं उन्होंने सबने हमें राय दी और बहुत ही अच्छी अच्छी राय दी खाने पीने की भी, और वो भी सब आप लोग सब खाओ, मगर फला टाइम खाओ और ये खाओ। यहाँ पर सब कुछ योगा ही नहीं, एक लेक्चर भी दिए जाते हैं, बताया जाता है, उससे बहुत ही हमारा फ़ायदा हुआ है। बिल जूजन साहब ने तो बहुत ही अच्छी तरह उनको समझाया, शेर पढ़ के भी समझाया, और उन्हें और धर्मेंद्र जी रहे, विवेक साहब रहे, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज कराएंगे और हर एक के हिसाब से कहते हुए आज तुम्हें राजधानी से चलना है या स्लो स्पीड से चलना है। हम कहते हुए यार चलो आज राजधानी चलो, इस तरह हमने नाम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों से कहे योग को आप स्टार्ट करके देखो, फ़ायदा 1 महीने के बाद आपको फ़ायदा बहुत दिखेगा, और इतना फ़ायदा दिखेगा कि आप यकीन नहीं कर पाओ। जवानी वापस आएगी। योगा मतलब योग और यंग। अब हम लोग सब लोग खड़े हो जाएंगे, सफाराई कर लेंगे। अभी हम लोग जो है वो अपने कॉमन योग प्रोटोकॉल की तरफ चल पड़े हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज बैठे बैठे जॉइंट्स जम गए होंगे। हाँ, हल्का हल्का स्ट्रेच करेंगे। दो आर्म को साइड चलाएंगे। मेकअप प्लीज फोकस थोड़ा ब्रीदिंग पे रखेंगे। धीरे धीरे श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास छोड़िए। मैंने स्लोली दिमाग को डाउन लाएंगे। हल्का पार्ट शोल्डर से रख करके कान से टच करने की कोशिश करेंगे। मैंने स्लोली डाउन, again slowly up, then down, again up, down. Slowly neck के ऊपर राइट साइड स्ट्रेच करेंगे। आंखें खुली रखेंगे। Hold it few seconds.
Then slowly come back and move it left side, lateral bend. Hold few seconds. धीरे धीरे थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे, देन बैक मूव करेंगे, देन वंस अगेन धीरे धीरे आगे चलेंगे, मूव करेंगे, एक बार बैक पर दोनों आर्म्स को रखते हुए स्ट्रेच करेंगे, बैकवर्ड बैंड, थोड़ा स्काई की तरफ देखेंगे, होल्ड इट फ्यू सेकेंड, ब्रीथ होल्ड नहीं करेंगे, देन स्लोली वापस आ जाएंगे और दोनों आर्म्स को फ्रंट लाएंगे, इंटरलॉक कर लेंगे फिंगर्स को, स्ट्रेच करेंगे बॉडी को बाहर की तरफ, फेस काम रखिए, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं मैक्सिमम। 5 4 3 2 1। अब इसी को इनसाइड रखिए, होल्ड इट 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। थोड़ा डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे, आर्म्स को सभी वेस्ट पे रख लीजिए, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, then slowly breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। देन आर्म्स को लूज करते हैं, धीरे धीरे दोनों पैरों को मिलाएंगे, एक बार धीरे से राइट लेग को स्ट्रेच करते उठाएंगे, अपनी नीज को होल्ड करेंगे, स्ट्रेच करने की कोशिश करिए अपने पेट के पास थोड़ा, देन स्लोली डाउन लाएंगे धीरे धीरे, देन स्लोली लेफ्ट लेग को अप करेंगे, अपनी लेफ्ट नीज को लाएंगे एब्डोमेन के पास, थोड़ा स्ट्रेच फील करेंगे, देन स्लोली डाउन, दोनों आर्म्स को वेस्ट पे रखेंगे, धीरे से एक बार टोज पे आने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, काफ मसल्स पर स्ट्रेच फील करिए, फेस लाइट, फोकस ब्रीदिंग पर, स्लोली डाउन आ जाएंगे इस पर, एक बार टोज को आपकी तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेच फील करेंगे अपने काफ मसल्स पर, एंड थोड़ा सा पार्ट फीट, आर्म्स को वेस्ट पे रख देंगे, हल्का सा लैटरल बैंड मूव करेंगे धीरे धीरे, होल्ड इट फ्यू सेकेंड, कम बैक स्लोली, देन स्लोली हल्का लेफ्ट साइड मूव करेंगे, वापस, अब धीरे से राइट आर्म्स को राइट के डाउन, लेफ्ट आर्म्स को अप लाते हैं, हल्का हल्का स्ट्रेच करेंगे, लेटरल बैंड, होल्ड इट फ्यू सेकेंड धीरे धीरे, देन कम बैक स्लोली, मूव इट लेफ्ट साइड धीरे धीरे, होल्ड इट फ्यू सेकेंड, फेस काम, फोकस ब्रीदिंग पर, धीरे धीरे वापस लाएंगे और दोनों पैरों को ज्वाइन कर लेंगे, धीरे धीरे राइट आर्म्स को एक बार आप लाएंगे धीरे धीरे धीरे, और लेफ्ट की स्कैपुला पर रख देंगे और अपने लेफ्ट की पाम से राइट की एल्बोज को प्रेस करेंगे पीछे की तरफ, थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे अच्छे से शोल्डर्स को, फेस काम रखिए, नॉर्मल ब्रीदिंग, देन यहीं से चेंज करेंगे अपने राइट की पाम से लेफ्ट आर्म्स के शोल्डर को स्ट्रेच करेंगे, होल्ड इट फ्यू सेकेंड, दोनों आर्म्स को इंटरलॉक कर लीजिए ऐसे, नेक के पीछे ले आएंगे और अपनी एल्बो से पीछे की तरफ पुश करिए और स्काई की तरफ देखने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेच फील करेंगे अपने शोल्डर्स पर, सांस नहीं रोकेंगे, सांसों की गति नॉर्मल बनाए रखेंगे, होल्ड इट फ्यू सेकेंड, देन कम बैक स्लोली, वंस अगेन एक बार फिर स्ट्रेच करेंगे, अपनी एल्बो से पीछे की तरफ, स्काई की तरफ देखेंगे, होल्ड इट फ्यू सेकेंड, धीरे धीरे वापस आएंगे, स्लोली अपने हाथों को उठाते हैं, धीरे धीरे धीरे, फिर से आर्म्स को वेस्ट पे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, नेक्स्ट 1 मिनट, कोशिश करें जितनी एयर आप मैक्सिमम भर सकते हैं, देन ब्रीथ आउट स्लोली, अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, जितनी मैक्सिमम एयर आप इनहेल कर सकते हैं, थोड़ा
रोकेंगे, बस हार्ट पेशेंट और हाई बीपी वाले नहीं रोकेंगे। धीरे धीरे एक्सेल करेंगे। वंस अगेन डीप इनहेल, होल्ड इट फ्यू सेकेंड एंड एक्सेल स्लोली स्लोली। इसमें नेक्स्ट ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। थोड़ा चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए दोनों आर्म्स को सामने लाएंगे। इनहेल करते मैक्सिमम अपनी चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए टोज पे आने की कोशिश करेंगे। देन एक्सेल स्लोली स्लोली। वंस अगेन मैक्सिमम ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। थोड़ा रोकने की भी कोशिश करेंगे होल्ड की। इनहेल करेंगे मैक्सिमम, होल्ड इट फ्यू सेकेंड, 3, 2, 1 एंड ब्रीथ आउट। देखिए लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है आपकी। फिर से इनहेल, जितनी ज्यादा सांस लेंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन शरीर के अंदर आएगी। फिर धीरे धीरे एक्सेल आउट। देन लास्ट टाइम वंस अगेन इनहेल, hold it few seconds, 3, 2, 1 slowly slowly वापस एंड रिलैक्स। थोड़ा किक करेंगे फ्रंट की तरफ लेग्स को। ट्राई टू मेक अ फीस्ट। देखिए छोटा सा अभ्यास है लेकिन हार्ट के लिए बहुत बड़े है। हाँ हल्का हल्का ऐसे हम उसको साइड रखते हैं, अपनी नीज को फोल्ड करते हुए अपनी हिप को टच करने की कोशिश करेंगे अपनी एडी से। धीरे धीरे थोड़ी देर में कॉमन योग प्रोटोकॉल शुरू होगा। उससे पहले थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का स्ट्रेच करते हैं। हल्का सा नीज बेंड करेंगे। होल्ड फ्यू सेकेंड, देन वापस। वंस अगेन एक बार फिर वापस एंड एक बार नेक को अप करेंगे। थोड़ा रुकेंगे स्काई की तरफ इसी पोजीशन में। सांसों की गति नॉर्मल बनाए रखेंगे। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। स्लोली स्लोली नेक को डाउन लाएंगे धीरे 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 धीरे। वंस अगेन एक बार फिर राइट साइड ले जाएंगे धीरे धीरे। थोड़ा रोकेंगे। कम बैक स्लोली स्लोली। Then turn to the left side, stretch again and relax। अब थोड़ा ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे मैं शोल्डर के साथ। आर्म्स को देते साइड में रखेंगे। इनहेल करते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे ऐसे और शोल्डर्स को पीछे की तरफ ले जाएंगे। एक्सहेल करते हुए स्लोली स्लोली वापस। वंस अगेन मैक्सिमम ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। देखिए योग के अंदर ब्रीदिंग का बहुत महत्व है, तो आप लोग ब्रीदिंग का ध्यान देंगे। थोड़ा रोकने की कोशिश करेंगे 2 से 3 सेकंड। देन ब्रीथ आउट। वंस अगेन ब्रीथ इन करते हुए स्ट्रेच करेंगे चेस्ट सामने की तरफ फुली आपकी। देन एक्सहेल स्लोली स्लोली। लास्ट टाइम फिर से एक बार। होल्ड इट फ्यू सेकंड एंड थोड़ा पार्टी फीट कर लेंगे। आर्म्स को वेस्ट पर, हिप सर्कमफ्लेक्शन करेंगे। थोड़ा अपनी लोअर बैक को रिलैक्स करेंगे। सांसों की गति नॉर्मल धीरे धीरे। अभी धीरे धीरे चलिए। जिस गाड़ी का मैं तैयार था अभी इसी के बाद बस वो शुरू करने वाले हैं कॉमन योग प्रोटोकॉल। कोशिश करेंगे कि फेस काम बनाए रखें, स्माइल फेस पर बनी रहे और जो परिभाषा है आसन की स्थिर सुखम आसन वो बरकरार रहे। मतलब आसन करते हुए आप स्थिरता भी रहें और सुख की अनुभूति भी करें। चलिए इसी के साथ हमको मन योग प्रोटोकॉल सामने की तरफ वाइब्रेट करते हुए यानी फुल बॉडी वाइब्रेट कर लेंगे। एक बार सेक कर लीजिए अच्छे से, प्रिपेयर कर लेंगे अपनी नेक्स्ट एक्टिविटीज के लिए। आर्म्स को रेस्ट पे रखिए। 2 से 3 गहरी सांस लेंगे। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन,
Breathe out. Once again, breathe in and breathe out. Then let's start a common yoga protocol. Firstly, नेक को स्ट्रेच करते राइट साइड लेटरल बैंड रखेंगे, धीरे धीरे श्वास अभिगति नॉर्मल बनाए रखेंगे, जर्क बिल्कुल नहीं देंगे. स्लोली स्लोली मूव ऑन योर लेफ्ट साइड, स्लोली आंखें खुली रखेंगे. देन लेटरल बैंड अगेन राइट साइड, धीरे धीरे. नेक पेन है तो अवॉइड कर देंगे, बाकी सभी कंटिन्यू. स्लोली स्लोली लेफ्ट, श्वास की गति नॉर्मल. वंस अगेन एक बार फिर राइट साइड, देन स्लोली स्लोली टर्न टू योर लेफ्ट. धीरे से नेक को सामने लाएंगे. अब धीरे धीरे नेक को अपने राइट शोल्डर्स की तरफ ले जाएंगे. स्लोली स्लोली आंखें खुली रखेंगे, स्लोली स्लोली फ्रंट लाएंगे. श्वास भरते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड शोल्डर्स की तरफ ले जाएंगे, सामने देखेंगे. ब्रीथ आउट करते हुए सामने लाएंगे. तो राइट शोल्डर्स की तरफ मूव करेंगे धीरे धीरे. फेस काम रखिए, स्माइल बनी रहे. धीरे धीरे वापस, देन मूव इट अगेन लेफ्ट साइड, धीरे धीरे धीरे. देन स्लोली स्लोली फ्रंट. एक बार फिर नेक्स्ट टाइम राइट साइड मूव करेंगे, धीरे धीरे सामने. मूव इट लेफ्ट शोल्डर्स की तरफ मूव करेंगे. देन वंस अगेन स्लोली स्लोली वापस. नेक्स्ट एंड थर्ड मोमेंट फॉर नेक का. नेक को लेटरल साइड रख दीजिए और हाफ सर्कमडक्शन करते हुए धीरे धीरे अपने लेफ्ट शोल्डर्स की तरफ कोशिश करेंगे. आगे की तरफ मूवमेंट ना करें, सिर्फ हाफ सर्कमडक्शन ऑन बैक. और कोशिश करें आंखें खुली रहें. चक्कर आ रहे हैं तो वापस आ जाएंगे, चक्कर की फीलिंग है तो वापस आ जाएंगे. ये तो धीरे धीरे एटलीस्ट 5 टाइम्स करेंगे. राइट शोल्डर से लेफ्ट की तरफ सर्कमडक्शन करते हुए हाफ एंड लेफ्ट से राइट की तरफ स्लोली स्लोली. जर्क बिल्कुल नहीं देंगे, धीरे धीरे. लास्ट राउंड, slowly move on right and slowly move on left. और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे. थोड़ा सा हल्का हल्का करते शोल्डर कर लेंगे मूवमेंट. 2 से 3 गहरी सांस लेंगे. ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन. हल्का सा पार्ट फीट दोनों पैरों में. धीरे धीरे दोनों आर्म्स को उठाते हुए सामने की तरफ लाएंगे स्कंद संचालन के लिए. रेज करते हुए आप ले जाएंगे अपने ओवर द हेड, कानों से लगे रहे और पाम की दिशा पोजीशन चेंज कर देंगे. इसी अवस्था को बनाए रखेंगे कुछ देर. सांसों की गति नॉर्मल, फेस काम. होल्ड इट फ्यू सेकेंड. 5 4 3 2 1. देन पाम की दिशा चेंज करेंगे, पाम फेस ईच अदर. देन स्लोली स्लोली डाउन लाएंगे, स्लोली स्लोली स्लोली. देन रिलैक्स टाइम में दोनों आर्म्स को पुट कर लेंगे अपने वेस्ट पर. थोड़ा आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं. और मूव करते हुए डीप ब्रीदिंग का ध्यान रखेंगे. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. फिर से आर्म्स को वेस्ट पर रख लेंगे. धीरे धीरे दोनों आर्म्स को डाउन लाएंगे साइड थाइस पर. इनहेल करते दोनों आर्म्स को साइड से ले जाएंगे शोल्डर लेवल तक. पाम की दिशा अपवर्ड रखेंगे और दोनों आर्म्स को फोल्ड करते हुए दोनों आर्म्स को अपने शोल्डर्स पर पुट कर देंगे. और इनहेल करते हुए दोनों एल्बोज को ज्वाइन करते हुए लंबी गहरी सांस भरेंगे और शोल्डर सर्कमडक्शन करेंगे 5 टाइम कानों से सटे हुए. जिनको शोल्डर फोल्डर की समस्या रहती है उनके लिए बहुत ही अच्छा है यह आसन. धीरे धीरे इनहेल करते अपने एल्बोज को ज्वाइन करेंगे. श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे कोशिश करें नेक स्थिर बनी रहे आपकी. श्वासों की गति नॉर्मल बनाए रखेंगे. फेस लाइट रखेंगे धीरे 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 धीरे. द लास्ट राउंड इनहेल करते मैक्सिमम. ब्रीदिंग का खास ध्यान रखिए. ब्रीद आउट करते हुए स्लोली डाउन लाएंगे. अब इसी के साथ इसी को रिवर्स सर्कमडक्शन 5 टाइम. एक्सहेल करते सामने की तरफ एल्बोज को ज्वाइन करेंगे.
स्ट्रेच फील करिए अपने शोल्डर्स पर, अपने स्कैपुलर रीजन पर। एक्सहेल करते हुए एल्बोस को ज्वाइन करेंगे। देन लास्ट राउंड धीरे से सामने की तरफ ले आएंगे। देन रिलैक्स इट, आर्म्स को वेस्ट पे रख देंगे, पैरों में गैप बनाए रखेंगे, हल्का हल्का मूव भी कर सकते हैं आप नीज को। देन टेक डीप ब्रीथ, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। पैरों में हल्का सा वही गैप हाफ फीट का बनाए रखेंगे। दोनों आर्म्स को साइड से लाएंगे, स्लोली स्लोली इनहेल करते हुए दोनों आर्म्स को सामने की तरफ लाएंगे। इनहेल करते राइट साइड टर्न करेंगे और अपने लेफ्ट की पाम को राइट शोल्डर्स पर पुट कर देंगे और जितना ट्विस्ट कर सकते हैं कोशिश करें टोज आपकी मूवमेंट ना हो। और राइट की मिडिल फिंगर से देखते हुए पीछे देखेंगे। ब्रीथ होल्ड नहीं करेंगे, होल्ड इट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। देन स्लोली स्लोली कम बैक, धीरे धीरे धीरे। सेम देन अदर साइड, लेफ्ट साइड मूव करेंगे। स्लोली अपने राइट की पाम को लेफ्ट शोल्डर पर पुट कर देंगे और लेफ्ट की मिडिल फिंगर से देखते हुए पीछे देखेंगे। श्वासों की गति अपनी नॉर्मल बनाए रखेंगे। फेस काम, स्माइल ऑन योर फेस, होल्ड फ्यू सेकेंड। 4 3 2 1। देन कम बैक स्लोली स्लोली स्लोली। धीरे धीरे दोनों आर्म्स को डाउन ले आएंगे, आर्म्स को वेस्ट पर पुट करेंगे। देन टेक डीप ब्रीथ, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। नेक्स्ट मूवमेंट करेंगे नीज मूवमेंट। लेकिन खास करके नीज के स्ट्रेंथन और आपके पैर के स्ट्रेंथन के लिए बहुत बढ़िया। जिनको नीज में पेन हो वो हल्का सा जितना आप जा सकते हो उतना अपार्ट ऑफ फीट अपने शोल्डर के बीच के बराबर गैप ले लेंगे। दोनों आर्म्स को धीरे धीरे सामने की तरफ लाएंगे, पाम की पोजीशन चेंज करेंगे डाउनवर्ड टुवर्ड। एंड स्लोली स्लोली इनहेल करते हुए जैसे चेयर पर बैठते हैं ना ऐसे इतना कोशिश करें आपकी नीज आपके टोज से आगे ना जाए और बैक को स्ट्रेच सीधा रखने की कोशिश करेंगे। स्पाइन को कम कर लेंगे एटलीस्ट 3 to 4 इंच का। दोनों आर्म्स को साइड से लाएंगे, इनहेल करते दोनों आर्म्स को अप ले जाएंगे। स्लोली 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 दोनों आर्म्स को ज्वाइन करते हुए इंटरलॉक कर लेंगे फिंगर्स को। देन स्ट्रेच करेंगे बॉडी को आप और टोज पे आने की कोशिश करेंगे। देखिए अब 60 वालों के लिए बहुत अच्छा है, बैलेंसिंग आसना है, ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे इसके। होल्ड इट फ्यू सेकेंड, सभी कर सकते हैं। सांसों की गति नॉर्मल बनाए रखेंगे। देखिए स्माइल चली जाती है जब होल्ड करते हैं, स्माइल बनी रहे फेस पर। 5 4 3 2 1। स्लोली स्लोली डाउन डाउन। देखिए स्माइल नहीं बनाएंगे तो फोटो गलत आ जाएगी आपकी। स्लोली स्लोली डाउन, कैमरा का फोकस आपके फेस पर है। वृक्ष आसना, उसके लिए धीरे से अपना राइट लेग को फोल्ड करिए धीरे धीरे। देखिए बिगनर्स टोज पे भी रख सकते हैं, जो अच्छा अभ्यासी है वो धीरे से थाइज के पास लाने की कोशिश करिए। अपने अकॉर्डिंग बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, जर्क बिल्कुल नहीं देंगे। धीरे धीरे दोनों आर्म्स को अप ले जाएंगे। स्लोली स्लोली बिल्कुल स्ट्रेच करिए और सामने देखेंगे। लेकिन जिनको ध्यान लगाना अच्छा लगता है ना वो इसका अभ्यास ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, 1 से 2 मिनट। अभी 10 सेकेंड रोकेंगे। जरूरी नहीं है कि आप ऊपर लाए, टोज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिगनर्स 3 फेसेस में यह आसन होता है, नीच पे भी रख सकते हैं। होल्ड इट 5, देखिए इतना कह रहा हूं, स्माइल बनी रहे फेस पर। 4 3 2 1। स्लोली स्लोली पहले आर्म्स को लाएंगे, पहले आर्म्स को लाएंगे धीरे धीरे धीरे। देन राइट लेग को डाउन करेंगे, गहरी सांस लेंगे एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। धीरे धीरे फिर ये सेम अभ्यास अपने लेफ्ट लेग से करेंगे। स्लोली स्लोली राइट की थाइस पर पुट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप टोज पे भी रख सकते हैं, नीज पे भी रख सकते हैं, जहां बैलेंस बन जाए। जब बैलेंस अच्छा हो जाए तो दोनों आर्म्स को अप ले जाएंगे एंड और सामने की तरफ रखेंगे। कोशिश करें एल्बो आपके कान से लगी हुई। ब्रीदिंग नॉर्मल बनाए रखेंगे। खासकर यंग एज वाले इसका अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करें। और वो 60 है, बैलेंसिंग आजकल जो डिमांड चल रही है वो बैलेंस बहुत जरूरी है, तो वो भी इसका अभ्यास कर सकते हैं विद वॉल सपोर्ट।
5, 4, 3, 2, 1। देन धीरे धीरे हाथ एकदम से ब्रेक नहीं देंगे, स्लोली पाम के साथ चेंज करते हुए डाउन लाएंगे, धीरे धीरे धीरे, देन लेग्स को डाउन लाएंगे, देन रिलैक्स। नेक्स्ट जो हम आसना करेंगे पादहस्तासना, बस वो कोशिश करेंगे कि जिनको सीवियर बैक पेन है वो अवॉइड करेंगे, जिनको नेक पेन है वो अवॉइड करेंगे, बाकी सभी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत बढ़िया है। हल्का सा दोनों पैरों को ज्वाइन कर लेंगे, हाफ एक का गैप रखेंगे, धीरे धीरे मेल करते हुए दोनों आर्म्स को अप लगाएंगे, स्लोली स्लोली, जो ऊपर भी जाए तो सीरियस काम रहे। पाम की दिशा सामने एक तरफ रखेंगे, हल्का सा मेल करते बैक की तरफ पुश करते हुए एक्सेल करते डाउन आएंगे धीरे, और जब एक्सेल करते डाउन आए तो सामने देखते हुए एकदम से ब्रेक नहीं देना, नीज आपकी स्ट्रेट और जितना जा सकते हैं बिल्कुल जर्किंग नहीं, जो टोज को टच कर सकते हैं टोज को टच कर लीजिए, पाम फ्लोर से लगा सकते हैं पाम फ्लोर से लगा लीजिए, नीज स्ट्रेंथ और फील करिए स्ट्रेच अपनी थाइज मसल्स पर। होल्ड इट फ्यू सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। कम बैक स्लोली स्लोली करके जैसे जो था वापस आएंगे, धीरे 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 आर्म की तरफ चेंज करेंगे, डाउन डाउन डाउन, आर्म्स को रेस्ट पे रख लेंगे, देन लोड में काफी रिलैक्स लगेंगे पहले के मुकाबले आपको दोनों को है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। और जैसे फॉरवर्ड बेंड के साथ बैकवर्ड बेंड करेंगे, अब उनको बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है, वो कर सकता है कभी सीरियल बैक पेन वाले, बस चक्कर आए तो वापस आ जाएंगे। वन सेकेंड धीरे दोनों आर्म्स को मेल करते जाएंगे, आप आर्म के साथ चेंज कर लेंगे, धीरे राइट आर्म्स को धीरे धीरे अपनी लेफ्ट लोअर बैक पर रख देंगे राइट की, देन लेफ्ट आर्म को अपनी लेफ्ट लोअर बैक पर, और मेल करते पुश करेंगे बैकवर्ड बैंड, धीरे 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 जितना जा सकते हैं कोशिश करें एल्बोज अंदर की तरफ आए, श्वास को नॉर्मल बनाए रखेंगे, चक्कर आ रहे हैं तो वापस आ जाएंगे, थोड़ा रुकेंगे इसी में। 5, 4, 3, 2, 1, then come back slowly, slowly, slowly। इन्हें करते हैं राइट आर्म को स्लोली वापस लाएंगे धीरे धीरे, then लेफ्ट आर्म को स्लोली स्लोली, then थोड़ा बैक मोमेंट से हल्का फुल्का आगे पीछे भी कर लेंगे। देखिए आसन परफॉर्म करते हैं आपकी बॉडी की आपका बिल्कुल प्रोटोकॉल का मूव कर लीजिए, अपने शोल्डर्स पर मूव करेंगे। नेक्स्ट आसन है त्रिकोण आसन, जिनको भी साइड का पेन है या सीवियर बैक पेन है वो अवॉइड कर देंगे, बाकी इसका अभ्यास कर सकते हैं। और हार्ट पेशेंट और जो हाई बीपी वाले हैं वो कृपया कोई भी सांसें होल्ड नहीं करेगा, यहाँ से करना नहीं दिया है, होल्ड करने की तो होल्ड नहीं करेगी। हाँ कोशिश करेंगे राइट की टोच को अपने राइट साइड रखेंगे, हाँ स्मॉल स्टोरी इनहेल करते दोनों आर्म्स को ले जाएंगे साइड ऑफ शोल्डर लेवल पर आप, और मूव करेंगे इनहेल करते लैटरल बैंड राइट साइड, ये साइड वेस्ट कम करने के लिए आपको बहुत अच्छी है। अब लेफ्ट की पूरी फिंगर को देखते हुए स्काई की तरफ देखेंगे, फेस काम बनाए रखेंगे, स्ट्रेच फील करेंगे अपनी इनर साइड मसल्स पर, श्वास की गति नॉर्मल बनाए रखेंगे। होल्ड इट फ्यू सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, come back slowly, 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 then down। पैरों की पोजीशन सेम रखेंगे, आर्म्स को वेस्ट पर, deep breath, breathe out, breathe in, breathe out। रख लेंगे, इनहेल करते 1 सेकंड दोनों आर्म्स को साइड शोल्डर लेवल तक उठाएंगे, इनहेल करते धीरे धीरे लेफ्ट साइड लेटरल बैंड जाएंगे मूवमेंट करते हुए, और राइट की मिडिल फिंगर से स्काई की तरफ देखेंगे, देखना उसको वाइब्रेशन हो सकता है शरीर में। श्वास की गति नॉर्मल बनाए रखेंगे, फेस काम, होल्ड अगेन, 5, 4, 3, 2, 1, एंड स्लोली 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 धीरे धीरे आर्म्स को वेस्ट पर रखेंगे, धीरे धीरे दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे, स्लोली स्लोली हल्का हल्का आगे मूव कर लेंगे। ये हमारे कुछ स्टैंडिंग पोजीशन थी, तो मैंने प्रोटोकॉल किया, थोड़ा सिटिंग के लिए आएंगे, उससे पहले थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हल्का चल लीजिए, ब्रीदिंग फेस काम बनाए रखिए, ब्रीदिंग ब्रीथ आउट, स्लोली स्लोली नीच को बेंड करते हुए
वज्रासन में बैठने की कोशिश करेंगे। पहले इनको नीच पे ना सीधे सुखासन में जा सकते हैं। मैं लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करेंगे स्लोली स्लोली, मैं राइट लेग को स्ट्रेट करेंगे देखिए धीरे धीरे, और दोनों पैरों में गैप रखिए, दोनों पाम को अपने हिप से थोड़ा दूर और नेक को लूज कर दीजिए और शोल्डर्स पर अपने नेक को रख दीजिए और दोनों पैरों को हल्का हल्का मूवमेंट करते रहेंगे। शेक करिए। सेटिंग पोजिशन में हर आसन के बाद आपको इसी पोज में आना है। शेक करते रहिए, शेक करते रहिए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इन सेटिंग पोज आपका फर्स्ट आसन है दंडासना। सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं, खासकर मेरुदंड की जिसको समस्या है स्पाइन की, उनके लिए तो रामबाण है, बहुत बढ़िया। उसके लिए दोनों पैरों को ज्वाइन कर लीजिए, खासकर वेरिकोज वेन जिनको है उनके लिए भी। कोशिश करें बैक को स्ट्रेंथन करते हुए, दोनों पैर को अपने हिप के पास लाने की कोशिश करेंगे। पैर मिले रहे हैं आपके और अपने पाम से पैसे डालेंगे जमीन पर और शोल्डर से पुश करेंगे आप, और अपनी टोज को इनसाइड लाइए नीच के पास। स्ट्रेंथन फील करिए अपनी पूरी स्पाइन पर, आपकी काफ को स्ट्रेच फील होगा। वेरिकोज वेन्स वाले इसका अभ्यास कम से कम 1 मिनट, जिनका बॉडी पोस्चर स्पाइन में थोड़ी दिक्कत है वो भी इसका अभ्यास 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक। फेस काम बना रहे, स्ट्रेच फील करिए। लाइक 5 4 3 2 1। देन टोज को धीरे धीरे रिलीज करेंगे। देन दोनों पैरों में गैप लेंगे, आर्म्स को थाइस पर रखते हुए नेक को ऊपर छोड़ देंगे। शेक करते रहिए, शेक करते रहिए। जो देखने से उनको पेन नहीं होगा। तो योग के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है आपके ब्रीदिंग का, अपनी सांसों को महसूस करिए, फील करिए अपनी ब्रीदिंग को। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। नेक्स्ट जो आसन है भद्रासन, और खास करके फीमेल्स जिनको हार्मोनिकल डिसबैलेंस रहता है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। 2 से 3 मिनट इसका अभ्यास कर सकते हैं। जिनको सीधे नीच पेन है वो अवॉइड करेंगे, धीरे से बैक को सीधी करते रहें। फर्स्टली अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे, देन लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे। हॉर्मोन्स के लिए बहुत बढ़िया, आपके बैलेंसिंग के लिए। दोनों इंटरलॉक कर लेंगे अपने टोज को, और पहले बैक को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा करने की कोशिश करिए। सामने देखिए, धीरे धीरे कोशिश करेंगे अपने नीज मूवमेंट करने का। इसको हिप ओपनिंग एक्सरसाइज भी बोलते हैं। आपकी हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे श्वास की गति नॉर्मल बनाए रखेंगे। बिगनर्स धीरे धीरे, जिनका अभ्यास अच्छा होगा वो थोड़ा तेज करेंगे। हाँ, धीरे धीरे पेस बढ़ाएंगे, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। देखिए फेस हल्का स्माइल गायब हो जाती है, स्माइल बनाए रखिए प्लीज। देखिए एक स्माइल आपको अगर पेन भी हो रहा है ना तो वो भी नहीं होने देगी, महसूस करेंगे आप धीरे धीरे। अब लास्ट में और करने की कोशिश करेंगे, जो नीच को फ्लोर से टच कर सकते हैं करने की कोशिश करिए। फेस काम रखते हैं। होल्ड इट 5 4 3 2 1। धीरे धीरे नीच को अपनाएंगे। फर्स्टली लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करिए, धीरे 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 धीरे। आसन के बाद वापस आए बहुत धीरे धीरे। एंड दोनों आर्म्स को पुट करेंगे और लॉन्ग स्टिकिंग पोजीशन के लिए अपनी नेक को ऊपर छोड़ दीजिए। डीप ब्रीदिंग। अब नेक्स्ट जो आसन है वज्रासना, ये इतना अच्छा आसन है कि खाने के बाद अगर आप उसको 15 मिनट करें तो ये बिना डाइट फॉलो किए हुए, बिना वर्कआउट किए हुए आपका 2 kg 1 महीने में घटा देगा। 2 kg वेट खाली आप वज्रासन में बैठ जाए खाने के बाद। बस किन्हें नहीं करना, जिनको नीज पेन है वो इसे अवॉइड करेंगे। उसके लिए धीरे धीरे दोनों पैरों को ज्वाइन करिए। फर्स्ट लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए, देन राइट लेग। ये कोई डाइट फॉलो नहीं करनी, सिर्फ 15 मिनट खाने के बाद आप ये कर लीजिए। बाहर की तरफ रहेंगे, टोज मिलेगी। दोनों पाम को अपने नीज पे रख दीजिए। कोशिश करें हाथ सीधे, बैक स्ट्रेट और फेस काम। बस इसी अवस्था को बनाए रखें। स्टार्टिंग 2 मिनट से करें, जब अच्छा अभ्यास हो जाए तो 15 मिनट तक ले जाएं। और फील करिए रिलैक्स अपने स्ट्रेच को। डाइजेशन पावर इंप्रूव करने के लिए बहुत बढ़िया। सर्वोत्तम खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं। नाम से सीधा वज्रासन, तो शरीर को वज्र जैसा बना देगा आपके। अब जो नेक्स्ट आसन है तो आपकी बैक की स्ट्रेंथन के लिए बहुत बढ़िया है। बस जिनको चक्कर की समस्या आती है वो उसको अवॉइड करेंगे, हाई बीपी वाले अवॉइड करेंगे। उसके धीरे पहले लूज करने, शोल्डर्स को लूज करिए हल्का हल्का। एक लंबी गहरी सांस लेंगे
और श्वास छोड़ देंगे। अब धीरे धीरे अपनी नीज पे आने की कोशिश करेंगे, स्लोली स्लोली स्लोली। आर्धोष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे, थोड़ा गैप ले लेंगे अपनी नीज पर अच्छे से। अब ये करते हुए राइट आर्म्स को अप ले जाएंगे और धीरे धीरे राइट की पाम से अपने लोअर बैक पर पुट करेंगे, राइट बटक पर। लेफ्ट आर्म्स को धीरे धीरे ले जाएंगे, लेफ्ट की बटक पर अपने लोअर बैक के पास रखने की कोशिश करेंगे और इनहेल करते हुए पुश करेंगे आप। आंखें खुली रखेंगे, स्ट्रेच फील करिए अपने लोअर बैक पर। एल्बोज कोशिश करें अंदर की तरफ आए और अब इसी अवस्था को बनाए रखेंगे। चक्कर आ रहे हैं तो वापस आ जाइए। ये भी आपकी मेरुदंड के लिए बहुत अच्छा आसन है। श्वासों की गति नॉर्मल, कीप स्माइल ऑन योर फेस। धीरे धीरे वापस पहले बैक को सीधा करेंगे, धीरे धीरे सामने देखेंगे। स्लो स्लो राइट आर्म्स को वापस लाएंगे, धीरे धीरे। लेफ्ट आर्म्स को वापस लाएंगे, कम से ना वज्रासन पोजीशन। वज्रासन में दोनों नीज को ज्वाइन कर लेंगे, देन रिलैक्स। नीज पेन हो तो आप लॉन्ग सिटिंग में भी जा सकते हैं। रिलैक्स टाइम में अपना सारा ध्यान अपने ब्रीदिंग पर। हम नेक्स्ट आसन इसी के सेकंड वेरिएशन है पूर्णोष्ट्रासन। जिनको बैक पेन ज्यादा है वो अवॉइड कर देंगे, प्लीज वो नहीं करेंगे, वो अर्धोष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। उसके लिए भी धीरे धीरे नीज पे आएंगे, अपनी हाई बीपी वाली भी अवॉइड करेंगे। थोड़ा गैप ले लेंगे अपने नीज पर। धीरे राइट आर्म्स को ले जाएंगे, अब लोअर बैक पे नहीं रखेंगे। अपने राइट के पाम से अपने राइट की एडी को टच करेंगे, होल्ड करने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट आर्म से अपनी लेफ्ट एडी प्लीज जर्क नहीं देंगे। जब दोनों एडी को होल्ड कर ले तो बैक को पुश करेंगे आप आगे की तरफ, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं। स्काई की तरफ देखेंगे, इसी अवस्था को बनाए रखेंगे नेक्स्ट 15 सेकेंड। श्वासों की गति का नॉर्मल। देखिए जिनका पोस्टर डिफॉर्मिटीज होती है स्पाइन से रिलेटेड या कैसे भी, उनके लिए तो बहुत ही उत्तम आसन है। इसमें कोशिश करें सांसें होल्ड नहीं करेंगे, श्वासों की गति नॉर्मल बनाए रखेंगे। अब धीरे धीरे पहले हिप्स को स्लोली स्लोली डाउन लाएंगे, कम बैक स्लोली। धीरे धीरे लेफ्ट आर्म से स्लोली वापस, देन राइट से, और धीरे धीरे अपने नीज पर आ जाएंगे। स्माइल बनी रहे। अब आजकल स्ट्रेस की समस्या है, नेक्स्ट जो आसन है उसको स्ट्रेस रिलीवर आसन बोलते हैं। यानी ये चीजें तो बहुत बढ़िया है, बस किन्हें अवॉइड करना जिनको सीवियर नीज पेन है वो कृपया इसको अवॉइड करेंगे। स्पाइन में ज्यादा प्रॉब्लम है तब अवॉइड करेंगे, छोटे पेन में कर सकते हैं उसको। उसके लिए धीरे से अपनी नीज को एक्सटेंड कर लीजिए, रोज आपकी मिली रहेंगी। चीज थोड़ा सामने की तरफ, फेस काम रखते हुए, दोनों आर्म्स को नेल करते हुए आप ले जाएंगे। स्लोली स्लोली स्लोली, देन ऊपर जाके पाम को सामने की तरफ रखते हुए स्लोली स्लोली एक्सेल करते धीरे धीरे हाथों को डाउन लाएंगे, पहले थाइज के पास फ्लोर से टच कर देंगे, धीरे धीरे फिंगर स्टिप करते आगे जाएंगे। कोशिश करेंगे हिप आपके एडियो से लगे रहें। जाइए जाइए, जाके नहीं जाते जितना जा सकते हैं, जर्क नहीं देंगे। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है वो चिन को टच कर देंगे, नहीं कर पा रहे हैं तो इसी अवस्था को बनाए रखिए। श्वासों की गति नॉर्मल। हिप को कोशिश करें आपके एडी से लगे रहें, हाथ सीधे। अब इसी अवस्था को बनाए रखिए। जिनके टिच और चिन टच हो रही है तो फील करिए स्ट्रेच अपनी नीज के पास, हिप के पास। इसी अवस्था को बनाए रखिए एटलीस्ट 5 4 3 2 1। कम बैक जैसे गए थे धीरे धीरे तुम झटके वापस नहीं आएंगे। धीरे 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 देखिए स्पाइन को सेफ रखने के लिए धीरे 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 वापस आइए। स्लो स्लो दोनों आर्म्स को आप ले आएंगे, धीरे धीरे धीरे, then slowly come back in Vajrasana. Take a deep breath in, breathe out. शोल्डर फ्रोजन की समस्या रहती है, सर्वाइकल पेन बहुत बढ़ गया आजकल, उनके लिए बहुत अच्छा है। उनके शोल्डर्स वीक हैं, शोल्डर स्ट्रेंथ, खासकर फीमेल्स जो यंग एज हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया। इसके लिए वंस अगेन फिर से अपने नीज को एक्सटेंड कर लेंगे। लेकिन बीच बीच में पानी के गुट पीते रहिएगा, गर्मी का मौसम है ना, सिप ऑफ वाटर पीते रहिए। हाँ, चेस्ट को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे ऐसे, जब बच्चे को बैलेंस बना लें। धीरे धीरे दोनों आर्म्स को अप ले जाएंगे स्लोली स्लोली, और हेड के पास अपने राइट के पाम से अपने लेफ्ट की स्कैपुला होल्ड कर लेंगे, एंड राइट की पाम से अपनी लेफ्ट की स्कैपुला
पहले स्थिति बनाएंगे। अब श्वास भरते अपने एल्बो से प्रेस करेंगे पीछे की तरफ और स्काई की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। देखिए स्ट्रेच फील करिए अपने स्कैपुलर रीजन पर। श्वास नहीं होल्ड करेंगे। आपके शोल्डर स्ट्रेंथन के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। सर्वाइकल वाले जिनको सर्वाइकल की समस्या रहती है उनके लिए। हार्ट पेशेंट कृपया होल्ड ना करें, ब्रीथ। हाई बीपी वाले होल्ड ना करें। देन राइट आर्म्स को अप करेंगे और धीरे धीरे साइड चलाते हुए डाउन की तरफ लाएंगे और धीरे से वज्रासन में आ जाएंगे। थोड़ा रिलैक्स करेंगे वज्रासन में। डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। नेक्स्ट फिर से हम लॉन्ग सिटिंग पोजीशन के लिए जाएंगे। अब जो नेक्स्ट आसन करेंगे हम वक्रासना, और जिनको स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत बढ़िया है। जैसे राइट लेग को रिलीज करेंगे, दोनों आर्म्स को पीछे की तरफ रखेंगे, नाक और रिलैक्स करेंगे। अब जिनको आजकल ये डायबिटीज की बड़ी प्रॉब्लम है, डायबिटीज वाले कृपया प्लीज इस आसन का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें। यकीन मानिए 3 महीने के अंदर आपकी डायबिटीज बहुत अच्छे से नॉर्मल हो जाएगी। और जो बहुत ही अच्छा अभ्यास कर सके 5 मिनट, तो 6 महीने में मैं कह रहा हूँ कि जो इंसुलिन लेता है वो भी खत्म हो जाएगी। उसके लिए धीरे धीरे दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे, दोनों आर्म्स को के पास लाएंगे। स्लोली अपने राइट लेग को फोल्ड करिए। फोल्ड इतना करें कि आपकी लेफ्ट की नीच के पास आए। अब अपने लेफ्ट आर्म से एल्बो से अपनी राइट की नीच को प्रेस करेंगे। जो बिगनर्स है वो अपनी नीच को ऐसे बोल सकते हैं एल्बो से। अपने राइट के पाम को अपनी बिल्कुल मिडिल ऑफ द बैक के पास फ्लोर से टच कर देंगे और पुश करेंगे पीछे की तरफ। कोशिश करें आपकी नीज, आपके फेस, आपके शोल्डर्स एक लाइन में रहें। अभी इसी अवस्था को बनाए रखिए। 5, जरूरी नहीं है कि आप पूरा कर पाए, स्टार्टिंग में स्ट्रेच जितना आप दे सकते हैं। 3, 2, 1। स्लोली पहले फेस को सामने तक लाएंगे, धीरे धीरे धीरे। देन लेफ्ट आर्म से जो क्रॉस किया था उसको हटा देंगे। देन राइट लेग को धीरे धीरे स्ट्रेच करते हुए लॉन्ग सिटिंग पोजीशन के लिए चले जाएंगे। डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे धीरे वंस अगेन अपने दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे। यही अभ्यास अपने दूसरे पैर से। अब लेफ्ट लेग को धीरे धीरे फोल्ड करिए, स्लोली नीच के पास लाने की कोशिश करिए। अपने राइट आर्म से अपनी लेफ्ट नीच को ऐसे होल्ड कर लीजिए। जो क्रॉस कर सकते हैं, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, वो क्रॉस भी कर सकते हैं। लेफ्ट की पाम को मिडिल ऑफ द बैक रखते हुए पुश करिए पीछे की तरफ, रील करते हुए पीछे देखने की कोशिश करेंगे। जाने के लिए कोशिश करेंगे सभी का फेस कृपया नेक की तरफ हो, आपका मेरी तरफ। हाँ, उसके लिए धीरे से बॉडी को चेंज कर लेंगे। बैठे और राइट साइड कर लेंगे। जो सभी राइट से लेफ्ट साइड कर, एकदम झटके से नहीं जाएंगे, ऐसे धीरे धीरे। और सभी का फेस मेरी तरफ हो कृपया। हाँ, फेस मेरी तरफ हो, पैर ऐसा नॉल की तरफ, पैर ऐसा नॉल की तरफ। एडी में थोड़ा गैप ले लेंगे, पंजे बाहर की तरफ, और लेफ्ट आर्म को डाउन रखते हुए राइट को लूज करते हुए अपने लेफ्ट साइड नेक को रख देंगे। बिल्कुल कंफर्ट, कोई स्ट्रेच नहीं होगा। कृपया शोल्डर्स को लूज करिए, पैरों में गैप बनाए रखिए। देखिए स्ट्रेस खत्म करने के लिए जब बॉडी में पेन ज्यादा होगा, थकी हुई हो, ये आसन उसमें बहुत फायदेमंद है आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल में आसन है भुजंगासन, ये बैक स्ट्रेंथन के लिए बहुत बढ़िया है। इसके लिए धीरे धीरे दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे, एड़ी मिली हुई, पंजे मिले हुए, दोनों पाम को जो है अपने चेस्ट के पास लाएंगे। 5, जिनको बैक पेन ज्यादा रहता है वो ज्यादा से ज्यादा इसका अभ्यास करें। 4, 3, 2, 1। कम बैक स्लोली स्लोली स्लोली। देखिए मैं भी आसन करते फेस देखा तो काफी टेंस लग रहे थे, फेस काम रखिए बिल्कुल एकदम लाइट, परफॉर्म करते उतना ही करिए जितना आप कर सकते हैं। मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी के अनुसार रिलैक्स करिए। लास्ट टाइम फिर से मकरासन में जाइए जी। हील इनसाइड, टोज आउटसाइड। नेक्स्ट आसन जो है सलब आसन, वो भी आपके कार्ड स्पाइन की इरेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। उसके दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे, धीरे चिन को सामने लाएंगे, अपने राइट आर्म्स को स्ट्रेट करते राइट की थाइज के नीचे लाएंगे, लेफ्ट आर्म्स को लेफ्ट की थाइज के नीचे, पाम की दिशा अपवर्ड रखेंगे।
chin a bit touch और एक लंबा गहरा सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे, कोशिश करेंगे नीज स्ट्रेट रहे, नीज भी उठेंगे, चिन टच रखेंगे, जितना उठा के रख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब स्ट्रेच फील करिए अपने लोअर बैक पर, सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। जिनको गैस की बहुत ही ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो वो अवॉइड कर देंगे। होल्ड इट फ्यू सेकंड, हाँ फेस बनाए ना, काम बनाए रखेंगे फेस को काम। 5 4 3 2 1 स्लोली डाउन डाउन डाउन, दोनों हाथों को उठाते हुए मकरासन में चले जाएंगे। कोशिश करें लेफ्ट आर्म्स डाउन, राइट उसके ऊपर। देखिए ये मुद्रा आपके हार्ट के लिए भी बहुत बढ़िया है। फिर फील करेंगे रिलैक्स मकरासन में, जैसे बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए एकदम शरीर को। 15 सेकंड इसी अवस्था में रुकेंगे। ब्रीद इन ब्रीद आउट। धीरे धीरे दोनों पैरों को ज्वाइन करते हुए लेफ्ट साइड कर लेंगे सभी धीरे धीरे, और शवासन में आ जाएंगे। इन शवासन में हील इनसाइड, टोज आउटसाइड, पाम थोड़ा हिप से दूर रखते हुए अपवर्ड। रिलैक्स करेंगे इसी में 10 सेकेंड। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। जो फर्स्ट आसन है आपका इन सुपरनाइन पोजिशन है, उसके लिए पहले धीरे धीरे दोनों पैरों को ज्वाइन कर लेंगे, दोनों आर्म्स को हिप के पास लाएंगे। फर्स्टली राइट लेग को फोल्ड करेंगे, देन लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, दोनों पैरों को हिप से थोड़ा दूर, दोनों पैरों में गैप रखेंगे हाफ फीट का, पाम फ्लोर से टच, और इनहेल करते हुए अपनी स्पाइन को धीरे धीरे उठाएंगे, जितना मैक्सिमम आप उठा सकते हैं, और इसी अवस्था को बनाए रखेंगे एटलीस्ट 15 सेकेंड। जो थायराइड की समस्या जिनको रहती है उनके लिए आसन बहुत लाभकारी है। जिनको कॉन्सेंट्रेशन की कमी महसूस होती है उनके लिए, स्पाइन रेक के लिए, नीज के लिए, सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। 5 4 3 2 1 फुल स्लिप्स को डाउन लाएंगे, धीरे 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 पहले करेंगे, देन लेफ्ट लेग स्ट्रेट करेंगे धीरे धीरे, देन राइट, दोनों पैरों को एक साथ में ले जाएंगे धीरे धीरे, और शवासन में चले जाएंगे एंड रिलैक्स। अब देखिए आपकी बैली, आजकल सबसे ज्यादा समस्या बैली नहीं है, ये बढ़ जाती है। अब इसको कम करने के लिए आसन करेंगे उत्तान पादासन। उसके लिए दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे। जिनको बैक पेन है वो आर्म्स को बैक की सपोर्ट पे लाएंगे, बाकी आर्म्स को हिप्स के पास आते हुए पाम फ्लोर से टच, और धीरे से दोनों पैरों को इनहेल करते हुए अप टू 20 डिग्री उठाने की कोशिश करेंगे, सिर्फ 20 डिग्री, टोज पॉइंटेड, नीज स्ट्रेट। अब इसी अवस्था को बनाए रखेंगे एटलीस्ट 15 सेकेंड, और फील कीजिए अपने पेट पर, कंपन महसूस करिए। देखिए कैसे मूव करेगा, बड़ा खाते हैं भैया, पेट को रेस्ट नहीं देते, महसूस करिए अपने बैली एरिया पर, काम लीजिए कुछ इसको, फेस काम बना रहे इसी अवस्था में, पेन की अवस्था में भी बना रहे। चलिए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को डाउन लाएंगे और शवासन में चले जाएंगे। अब बड़ी जल्दी शवासन में जाएंगे सभी, रिलैक्स है। अब जो नेक्स्ट आसन है अर्ध हलासन, ये आपके जिनको वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत बढ़िया है। और जैसा कि मैंने बताया जिनको बैक पेन है वो आर्म्स को बैक के सपोर्ट पे रखेंगे, प्लीज सीधा नहीं करेंगे एकदम। चलिए उसके लिए दोनों पैरों को ज्वाइन करिए, दोनों आर्म्स को साइड में रख देंगे हिप के पास, पाम फ्लोर से टच, स्लोली स्लोली दोनों पैरों को रेज करेंगे, पहले 10 डिग्री, देन 20, 30, 40, से होते हुए 90 डिग्री पे ले जाएंगे। हिप फ्लोर से टच रखेंगे, आहा पेट पर और वाइब्रेशन फील करिए पेट पर वाइब्रेशन, कंपन, लेकिन कंपन होते हुए भी फेस काम रखिए। टोज पॉइंटेड, बिगनर्स को कंपन ज्यादा महसूस होगा, इसी अवस्था को बनाए रखेंगे। 10 9 8 7 5 4 3 2 1 एंड स्लोली डाउन लाएंगे, धीरे 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 इस समासन में चले जाएंगे।
ये आसन के बाद अनुभूति करिए जिस पार्ट पर आपने महसूस किया कि हमको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा। डीप ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट। अब जो नेक्स्ट आसन है, आजकल बात की समस्या बहुत होगी गैस्ट्रिक, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। और जिनको सर्वाइकल है वो अपनी नेक नहीं उठाएंगे, नेक डाउन रखेंगे, बाकी सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। उसके लिए दोनों पैरों को ज्वाइन करिए। फर्स्टली पहले राइट लेग को फोल्ड करेंगे, हिप के पास लाइए, देन लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाएंगे और अपनी नीज को अपने पेट के पास लाइए। दोनों पाम से अपनी नीज को होल्ड करेंगे, इंटरलॉक भी कर सकते हैं फिंगर्स को। पहले एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी नोज को टच करने की कोशिश करेंगे अपनी नीज। देखिए जिनको बैक पेन है और सर्वाइकल की प्रॉब्लम, वो नेक नहीं उठाएंगे, नेक फ्लोर से टच। श्वास प्लीज होल्ड नहीं करेंगे, फेस काम बनाए रखेंगे। खास करके हार्ट पेशेंट और जो हाई बीपी वाले हैं वो तो बिल्कुल भी होल्ड नहीं करेंगे। ब्रीथ जितना रुक सकते हैं 5 सेकंड रुकने की कोशिश करेंगे, जैसे इसके नाम से सीधे पवन मुक्त, ये सच में पवन मुक्त करता है। 1-2 मिनट कर लेंगे ना तो हो जाएगी। अभी 4 3 2 1 पहले नेक डाउन लाएंगे धीरे धीरे, ठीक है, वापस बहुत स्लोली। हम दोनों हाथों को हटाएंगे, एडियो को फ्लोर से टच करेंगे। फर्स्टली लेफ्ट लेग स्ट्रेट करेंगे, देखिए ये वापस आने की जो समझिए। देन राइट लेग, ये दो पैर सीधा कर देते हैं, ऐसा नहीं करेंगे और शवासन में चले जाएंगे। रिलैक्सेड। अब शवासन की मुद्रा में 20 सेकंड इसी का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद, सारा ध्यान अपने ब्रीदिंग पर। धीरे धीरे सांस ले रहे हैं और धीरे धीरे सांस छोड़ रहे हैं। स्माइल बनी रहे फेस पर, मुस्कान बनी रहे, टेंशन लगने नहीं, इसको रिमूव करिए अपने स्माइल से। कीप स्माइल। इसी अवस्था को बनाए रखेंगे। ये पहले के मुकाबले काफी रिलैक्स फील करिए। टॉप ऑफ द हेड से लेकर अपनी टोज फील कीजिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ये कभी भी आप उठने का अभ्यास करेंगे, देखिए सीधे उठ जाते हैं, सीधे नहीं उठेंगे प्लीज। कभी भी आप जब लेटे तो हमेशा दाहिनी करवट या बाईं करवट लीजिए प्लीज। ये नियम आप अपने बना लीजिएगा। चलिए अभी धीरे धीरे दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे। सभी धीरे धीरे अपनी पहले लेफ्ट साइड टर्न लेंगे, धीरे धीरे स्लोली पहले लेफ्ट साइड से उठेंगे धीरे। देखिए सीधे उठ रहे हैं दीदी, लेफ्ट साइड टर्न से धीरे धीरे। देखिए अपनी स्पाइन को स्वस्थ रखने के लिए धीरे 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 लॉन्ग सिटिंग पोजीशन के लिए आ जाएंगे। धीरे धीरे फेस में तरफ कर लेंगे। दोनों आर्म को अपने हिप के पास, नेक के ऊपर, और फील करिए रिलैक्स 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 रिलैक्स। प्राणायाम फेस की ओर चलेंगे। नेक्स्ट पेज जो हमारा प्राणायाम का है, उसके लिए किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए आप, लाइक सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन या वज्रासन, जिसमें भी आप लॉन्ग टाइम सेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पद्मासन लगाएं। कंफर्टेबल दोनों आर्म्स को सामने तक रखिए और अपने थंब से अपने नेक्स्ट फिंगर की टिप को लगा दीजिए। पाम अप पूरी ज्ञान मुद्रा है, जिनको ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ानी है ना अपने, उनके लिए बहुत बढ़िया कॉन्सेंट्रेशन पावर के लिए। बैक सीधी रखेंगे, थोड़ा सांस का अभ्यास करेंगे। ब्रीद इन ब्रीद आउट। देखिए जब ब्रीद हो तो लंग्स में होगा, आपको दिखनी भी चाहिए। फिर से करिए सांस, ब्रीद आउट। लोग क्लीनिंग एक्सरसाइज करेंगे, कपाल भाती क्रिया। तो उसके लिए अपना ऐसा ब्रीथ करते हुए फोर्सफुली एक्सहेल करना है। जो बिगनर्स हैं वो 1 सेकेंड 1 बीट, जब थोड़ा अभ्यास करेंगे 1-2 महीने हो गए, वो 1 सेकेंड 2 बीट, और जिनका अभ्यास बहुत अच्छा है वो 3 to 5 बीट। अभी हम 3 आपको करके भी दिखाएंगे। स्लोली ऐसे, थोड़ा मीडियम, फास्ट, ऐसे।
जो हाई बीपी वाले हैं वो 1 सेकेंड 1 बीट। ठीक है, रामबाण है आपके पेट के लिए, सभी समस्याओं के लिए। ठीक है, हमारे योग के अंदर पेट के जो आयुर्वेद के अंदर बताते हैं 120 बीमारियां हैं पेट की, उसकी 120 की 120 बीमारियां आपकी इस कपालभाति करने से दूर हो जाएगी। 120 बीमारियां करते रहिए। फेस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा ब्रीदिंग का, फेस काम लाइट बनाए रखिए। जिनका बैठ चलो पेट पे प्रेशर भी डाल सकते हैं। कीप ऑन योर स्माइल ऑन योर फेस। प्लैंक स्ट्रोक और करेंगे। Then relax with a deep breath. Breathe out, breathe in, breathe out. एक बार फिर 30 का स्ट्रोक करेंगे। रेडी, चलो स्टार्ट। जिनको कब्ज गया, गैस्ट्रिक कैसी प्रॉब्लम होती है, वो उसका अभ्यास घर पे अभी तो हम कम करा रहे हैं कम्युनिटी प्रोटोकॉल की वजह से, कम से कम 15 मिनट। एक नियम बना लीजिए, जब भी आप कपालभाति करते रहिए, कपालभाति करें तो अनुलोम विलोम जरूर करें। उसके बाद then relax, deep breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। जो आप पद्मासन लगाया है वो चेंज भी कर सकते हैं लेग को। जो पद्मासन में बैठते हैं पद्मासन में बैठे रहें। लेफ्ट आर्म से ज्ञान मुद्रा बरकरार रखेंगे। अब नेक्स्ट जो प्राणायाम हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम, खासकर जिनको लंग से रिलेटेड जैसे भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत बढ़िया। आपकी ब्रेन में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन के लिए सांस को सामने रखिए। स्टार्टिंग की 2 फिंगर्स को क्लोज कर लीजिए ऐसे। अब राइट थंब से अपने राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे। सीधा हाथ यूज करिए प्लीज सभी। राइट नॉस्ट्रिल बंद करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करेंगे, मैक्सिमम ब्रीथ इन। अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे अपनी राइट की रिंग फिंगर से और राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट कर देंगे। अब राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए अपने राइट थंब से और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट कर देंगे। अब इसी अभ्यास को बनाए रखेंगे। इसको अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी बोलते हैं। तो ज्यादा फायदा इस प्राणायाम को लेने के लिए कम से कम 20 स्ट्रोक मिनिमम आप घर पे इसका अभ्यास करें तो कम से कम 20, जरूर इसका असली फायदा होगा। ये कंप्लीट हो जाए पहले आप राइट से ले, लेफ्ट से छोड़े, फिर लेफ्ट से ले और राइट से छोड़िए, कि कंप्लीट ब्रीदिंग। ऐसे आपको 20 स्ट्रोक। फिर वही हार्ट बीट, हार्ट जिनको पेशेंट्स हैं वो सांसें होल्ड नहीं करेंगे, बाकी इसका अभ्यास आप होल्ड भी कर सकते हैं। ये फेस पर प्लीज हैप्पीनेस बनी रहे। आपकी जो न्यूरॉन्स होती है ब्रेन की सेल्स, उसको जो मोर एनर्जाइज करता है ये प्राणायाम। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपके ब्रेन की तरफ सप्लाई होती है। जो मेडिटेशन का अच्छा अभ्यास करते हैं कम से कम इसका अभ्यास 15 मिनट। जिनकी सांसें फूलती हैं चढ़ते वक्त तो उसका अभ्यास कम से कम 30 मिनट। जिनको हेल्थ प्रूफ प्रैक्टिस करना है वो 5 मिनट्स करें। लास्ट 3 राउंड और करेंगे। लास्ट राउंड। महसूस करिए अपने ब्रीदिंग को। फील से धीरे धीरे वापस आएंगे, वापस ज्ञान मुद्रा के साथ फेस काम और गहरी सांस का अभ्यास करेंगे। और जो नेक्स्ट प्राणायाम है गर्मी का मौसम है, जो हमारा प्रोटोकॉल बनाया गर्मी शीतलीय प्राणायाम। ये किनको नहीं करना है पहले सुन लीजिए। जिनको सर्दी से प्रॉब्लम जितने भी रहती है, कफ या नोज ब्लॉक है, ये साइनस की प्रॉब्लम, वो अवॉइड करेंगे। सर्दियों के मौसम में और बारिश के मौसम में कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की।
गर्मी के मौसम के लिए रामबाण, उसके लिए करना है शीतली के लिए हल्का सा अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे, जीभ को हल्का सा टिल करेंगे, जीभ के रास्ते सांस लेंगे, फिर जीभ को अंदर कर लीजिए, तो फेस काम। अब इसी को होल्ड करेंगे थोड़ी देर, हार्ट पेशेंट होल्ड नहीं करेंगे प्लीज, थोड़ी देर होल्ड करिए, यानी एक्सेल बाय बोथ नोस्ट्रिल। वंस अगेन जीभ को बाहर निकालेंगे, ठंडक महसूस करेंगे। देखिए साथ के साथ जैसे इसके नाम से चीज होता है शीतली प्राणायाम, बॉडी को टेम्परेचर कम करने के लिए। कभी आपको पानी ना मिले तो बस कभी अभ्यास कर सकते हैं, तो पानी की पूर्ति आप 1 घंटे तक रुक जाओगे। कहीं भी जैसे आप जाएं और बहुत गर्मी लग रही है, तुरंत इसका अभ्यास कर लें। कम से कम 10 स्ट्रोक इसके आप करें, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेने के लिए मिनिमम। जब होल्ड करें तो फेस बिल्कुल काम, जब सांस छोड़े तो बहुत नोस्ट्रिल से ब्रीथ आउट करेंगे। खासकर ग्लोइंग स्किन जो फीमेल्स के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा है। फिर से वंस अगेन, अभी ठंडक महसूस भी होगी, स्ट्रेस में भी बोलते हैं इसको प्राणायाम। फेस काम करते हुए होल्ड फ्यू सेकेंड, सांस छोड़ेंगे बहुत नोस्ट्रिल से। वंस अगेन इनहेल करेंगे, होल्ड इट फ्यू सेकेंड। देखिए तुरंत इसका फायदा मिलता है। कौन कहता है योग का बहुत बाद में फायदा मिलेगा, ऑटोमेटिकली आप एकदम फील करिए, काफी अच्छा महसूस करेंगे इसके करने के बाद। एनर्जाइज फील करेंगे, जो थकान आपकी वो रिमूव हो जाएगी आपकी इससे। देन एक्सेल बाय बोथ नोस्ट्रिल। वंस अगेन लास्ट टाइम, फिर से एक बार। एक्सेल बाय बोथ नोस्ट्रिल। ऐसे प्राणायाम से ब्राह्मणी प्राणायाम, खास करके आपके ब्रेन यंग एज के लिए तो बहुत बढ़िया। फिर दोनों आर्म्स को सामने रखेंगे, दोनों मिडिल फिंगर से अपनी आईज को क्लोज करेंगे, आईज क्लोज कर रखेंगे, मिडिल फिंगर्स के आंखों पे रखेंगे, कान से अपने राइट थंब से कान को क्लोज कर लेंगे। तो धीरे से जैसे ब्राह्मणी की आवाज़ करते हैं ना, श्वास भरते हैं, इसी अभ्यास को करेंगे एटलीस्ट 5 टाइम। प्रेशर ज़्यादा नहीं डालेंगे, मीडियम प्रेशर, जितना आप कंपन महसूस हो बस आपको, वॉइस ज़्यादा नहीं निकालेंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को उठाएंगे, कोशिश करें आंखें बंदी रखेंगे। इसके बाद धीरे धीरे थोड़ी देर आंखें बंद रखेंगे, ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे, ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट। और धीरे धीरे दोनों पाम से अपने हथेली को अच्छी से रगड़िए, अच्छे से रब करेंगे और तुरंत अपनी आंखों पे रख देंगे बहुत लाइट प्रेशर के साथ। फेस पे नहीं रखेंगे प्लीज, थोड़ी देर आंखों पे रखिए, धीरे धीरे हाथ हटाइए, आंखें बंद रखेंगे अभी, और जितना धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। स्लोली स्लोली ओपन योर आईज, स्लोली 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 स्लोली। अब ध्यान सेशन के लिए हम प्रोफेसर ब्रिजभूषण सर मेरे टेस्टोनोमेंट से ध्यान सेशन के लिए चलेंगे। Janab Badruddin Siddiqui is the coach of Indian fast bowler Mohammad Shami. I request Badruddin Siddiqui to come forward and receive a token of love from our Vice Chancellor. Janab Badruddin Siddiqui sir. Demonstrate some asanas in front of us. So clap for Uruj. She is a student of class 7 from ABK High School. Flexibility.
Clap for her. Flexibility and strength she is showing is very wonderful. नमस्कार दोस्तों। करो 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 और आप देख सकते हैं कितनी छोटी बच्ची है और कितना अच्छे से कितनी स्ट्रेंथफुल एक्टिविटीज, स्ट्रेंथफुल आसनास जो आपके सामने प्रेजेंट कर रही है। ये हमें दिखाता है कि आसन, योग या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी शुरू करने के लिए कोई उम्र किसी की मोहताज नहीं होती। आप किसी भी एज में शुरू करिए, वो हमेशा आपका इम्प्रूवमेंट वहीं से शुरू हो जाएगा। क्लैप फॉर उरूज मुदस्सिर। शी इज जस्ट ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप उरूज मुदस्सिर का हौसला अफजाई कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया जिनकी नॉट ब्लॉक रहती है और साइनस की प्रॉब्लम नहीं रहती है, जिनको नॉइज क्लीनिंग प्राणायाम भी शुद्धि भी बोलते हैं क्रिया। एक बार जोरदार तालियां फिर से सर के लिए, बहुत बढ़िया। देखिए ये योग के अंदर बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं जो आपकी नॉइज क्लीनिंग के लिए बहुत बढ़िया है। कभी भी आपकी नॉइज ब्लॉक नहीं होगी तो श्वास खुल के महसूस करोगे आप, अपनी मैक्सिमम ऑक्सीजन इंजेक्शन करोगे आप अपने लंग्स पर। एक बार फिर जोरदार तालियां। इसी के साथ में दो क्रिया और भी थे, सूत्र नेति और धोती। अभी हम परफॉर्म कर रहे हैं जल नेति। देखिए कभी भी इसका अभ्यास करें तो प्लीज योग एक्सपर्ट के साथ। So Ashtanga Yoga is incomplete without Dhyan. So I will request Professor Brajbhushan Singh sir, he is expert of Dhyan, kindly come and another. Well, ध्यान करना क्या है, किसी चीज का ध्यान ना करना ही ध्यान है, क्योंकि हर वक्त हमारे मन में ख्याल आते रहते हैं, ख्याल पे ख्याल, और उन ख्यालों की श्रृंखला को ब्रेक करना ही ध्यान है। जब आपके मन में कुछ भी ना आए तो मैं एक ऑफ रिपीटेड मेरा ये शेर है, कह रहा है मौजे दरिया शोरे दरिया से समुंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना वो खामोश है। देखिए ये जो आपने योगिक एक्टिविटी की, दिस वॉज वेरी टायरसम।
आपको इसमें मस्कुलर एक्टिविटी करनी पड़ी, इधर दर्द हुआ उधर दर्द हुआ। जो स्थिर सुखासन की परिभाषा है कि आसन में स्थिरता रहे, सुख रहे और सांसों का आवागमन नॉर्मल रहे, वो थोड़ा सा मुश्किल था 1-2 दिन में, वो अखंड योगा के थ्रू आएगा। तो एक्टिविटी इज ए मार्क ऑफ योर फिटनेस, मस्कुलर मूवमेंट इज ए मार्क ऑफ योर फिटनेस, लेकिन मैं ये कहता हूं स्टिलनेस इज ए मार्क ऑफ सुपर फिटनेस। आप कितना तेज दौड़ते हैं, कितना तेज भाग सकते हैं, ये आपकी फिटनेस को दिखाता है, लेकिन कितना आप खामोशी के साथ बैठ सकते हैं, ये आपकी सुपर फिटनेस को दिखाता है। क्योंकि खामोशी के साथ बैठना बहुत मुश्किल है। एक और बात मैं ये कह दूं, देखिए दिस योगा प्रोटोकॉल जो भी है, ये लगता होगा बड़ा कि अरे इसमें, लेकिन दिस हैड बीन डिजाइन्ड आफ्टर ग्रेट रिसर्चेस डन बाय वेरियस साइंटिस्ट। तो आसन बहुत सारे हैं, इनफैक्ट 84 लाख आसन कहे जाते हैं, तो वो सब नहीं किए जा सकते, लेकिन ये चुनिंदा आसनों को इसमें इंक्लूड किया गया है काफी रिसर्च के बाद में, ठीक है। तो अगर आप इन्हें करेंगे तो डेफिनेटली हम सबको आज एक प्लेज लेनी चाहिए। प्लेज क्या है कि वी विल लीड ए पिललेस लाइफ, गोली रहित जीवन जिएंगे हम, दवा रहित जीवन जिएंगे। देखिए जैसा यहाँ पे अखंड योगा में कई पार्टिसिपेंट्स आए, उन्होंने कहा कि करने के बाद में दवाएं कम हो गई, तो यकीन मानिए हमारे डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी पीएचडी हुई हैं, रियल मरीजों पे हुई हैं, और उनमें ये पाया गया है कि जो योगा किया तो जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स थे दे वर क्योर्ड टू टोटलिटी। तो अगर आप योग करेंगे तो आप डेफिनेटली निरोग रहेंगे। देखिए शरीर माध्यम धर्म खलु साधनम, ये शरीर माध्यम है, मीडियम है धर्म को साधने का, रिलीजन को साधने का। इनफैक्ट ये शरीर मीडियम है इस संसार में जो आपको रुतबा मिलता है, ओहदा मिलता है, पैसा मिलता है, शोहरत मिलता है, उसको भी भोगने का। अगर आपका शरीर फिट है तभी आप उसको भोग पाएंगे। तो शरीर को सही रखने के लिए योग करें, रोज करें। अब जैसा तारिक साहब का हुक्म हुआ है ध्यान करवाने के लिए, तो मैं उससे पहले फिर एक अर्ज करता हूं। देखिए लाजिम है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसको तन्हा भी छोड़ दें। तो ये जो अक्ल है ये आपकी हर वक्त ख्यालों में डूबी रहती है, हर वक्त वो किसी ने कहा उनके ख्याल आए तो आते चले गए, दीवाना जिंदगी को बनाते चले गए, तो इनफैक्ट हम दीवाने ही बने रहते हैं। तो इस इन ख्यालों की श्रृंखला को हमें तोड़ना है और इस ध्यान में कुछ नहीं सोचना है, केवल उसके सिवा उसके तसव्वुर में रहना है, और ज्यादा देर नहीं, बहुत थोड़ी देर। देखिएगा ये आपको जो आपने ये योगा प्रोटोकॉल किया है उससे भी ज्यादा मुश्किल लगेगा। तो चलिए, हैव ए वेरी कंफर्टेबल पोज, सुखासन, वज्रासन, किसी में भी आप जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं बैठ जाइए। कुर्सी पे सर, कुर्सी पे बैठ जाइए। हाँ, जो कुर्सी पे बैठना चाहते हैं वो कुर्सी पे बैठना। इसमें कोई भी जिस्मानी काम नहीं करना है, इसमें सिर्फ मानसिक काम है थोड़ा सा, और वो ज्यादा टफ है। तो क्लोज योर आईज, जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीथ। सांस अंदर, सांस बाहर। योर फीट्स, अपने पैरों पे अपना ध्यान लाएं और ऐसा महसूस करें कि हीलिंग एनर्जी फ्रॉम अर्थ मूविंग टू योर अपर बैक, रिलैक्सिंग इट कंप्लीटली। जो आपने एक्सरसाइज की है, थोड़ी बहुत अकड़न जकड़न है, वो इस हीलिंग एनर्जी से सारी दूर हो रही है। फील रिलैक्सेशन गोइंग ओवर देयर। This healing energy moving to your shoulders, then to the back of your neck, relaxing it, to your head, to your forehead, to your eyes, to your cheeks, to your chin. Healing energy now in your neck.
feel. Then this healing energy is moving into your chest, to your abdomen. वहाँ पे जो भी कोई खराबी है उसको दूर कर रही है. Feel divine is existing in your heart. Feel it. Be without any thought. Of chemical reactions are going on, and sitting with this stillness is a mark on the balance in these chemical reactions ongoing in your body. तो मैं एक हमारी बच्ची है जिसने ये आसन किए थे, तो जनाब डॉक्टर साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आके इसको जनाब तारिक मुर्तजा साहब का, क्योंकि ये योग डे काफ़ी दिन से हो रहा है, मैं इनकी एक उसमें थोड़ा सा इनके बारे में कहना चाहता हूँ. इट वॉज ही who only took the initiative of starting this अखंड योग. और जैसा आपने सुना कि अखंड योग में पूरे साल चलाया इन्होंने, और उसमें काफ़ी एफर्ट लगता है. कई बार ऐसा होता था कोई नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा नहीं, आप यहाँ पे रेडी रहिए, आए या ना आए लोग, और पूरे साल चला. तो इट रिक्वायर्स ग्रेट करेज, ग्रेट पेशेंस जो इनके अंदर था. तो और मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस अखंड योग से बाहर वालों ने बहुत फ़ायदा उठाया. यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने, यूनिवर्सिटी के तलबा ने, इतना नहीं, उन्होंने इसमें शिरकत नहीं की. अगर वो शिरकत करते तो डेफिनेटली फ़ायदा होता. देखिए, एक फ़ायदा आप माने, आजकल आदमी 40 के बाद में जितने पैसे का खाना खाता है, कम से कम 25 पैसे का उसमें से वो दवा भी खा रहा है. तो हमें, जैसा आपने सुना, वी शुड टेक ए प्लेज that through this अखंड योग initiated by तारिक मुर्तजा साहब, we would move for leading a pillless life. एक गोली रहित जीवन जीने की तरफ हम अग्रसित हों. और आप यकीन मानिएगा, अगर आपने इस अखंड योग में भाग लिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी दवाएं कम ना हो जाएं. प्रोग्राम के एंड में मैं अपने आली जनाब वाइस चांसलर साहब गुलरेज साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी पैट्रनेज के लिए, क्योंकि उन्होंने हर कदम पे मोटिवेट किया और जो भी फैसिलिटीज़ थी वो सारी मुहैया कराई. बिना आपके सपोर्ट के ये प्रोग्राम नहीं हो सकता था. मैं जनाब रजिस्ट्रार साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. ये भी टाइम टाइम पे इस योगा प्रोग्राम को बढ़ाने में मदद करते रहे. डीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, नईमा मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ, फैकल्टी मेंबर्स का, कोचेस का, ट्रेनर्स का, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस अखंड योग में आए, लाभ उठाएं और एक पिललेस लाइफ लीड करने की तरफ आगे बढ़ें. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.
सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे अलीगढ़ रूह सैयद इल्म फन के गुलसितां अलीगढ़ रूह सैयद इल्म फन के गुलसितां हम तेरे ही फूल हैं और तेरे ही हम बाग़बां चल दिया है इस चमन से अब खिज़ां का कारवां चल दिया है इस चमन से अब खिज़ां का कारवां यहाँ की तकबीरो अज़ां से कांपता है आसमां अलीगढ़ रूह सैयद इल्म फन के गुलसितां अलीगढ़ ज़ीनते फन ख्वाब सर सैयद की है ताबीर तू